Okay, so very good morning to you all. Now we are going to start assignment problem that is in unit 3. That is in unit 3. Okay, so what is assignment problem? Most of the students confuse this word assignment. Assignment means whatever the daily and routine assignment or unit assignment that we usually give to you. Okay, that is not that assignment. Assignment, the word assignment here means assigning of jobs to the machine, assigning of jobs to the to a particular person, assigning of clerks to counter, assigning of salesmen to different sales areas. So there are many situations arises where the assignment of people or machine may be required, so that you can find out that which particular person is better suitable uh, to a particular job. So assignment of workers to machine, assignment of clerks to counters, assignment of salesmen to different sales areas, and assignment of machine to operators. So there are number of tasks can be considered during this assignment problem. So here the word assignment means assigning of jobs. Assigning of jobs. For example, if you are having in any industry, if you are having 5 jobs, and again you are having 5 workers. Now your job as a manager, maybe your job as a manager is to assigning uh, one. Now your as a manager, your job may be to assign a best suitable combination of a job to the workers. जैसे ऐसे नहीं कि आप 1 को 1 दे दें, मे बी 1 is best suitable for the job 2. So you as a person, you as a HR manager, maybe your job is to assign a best combination of jobs to workers, so that the total assignment time, the total time taken to complete the job would be minimum. So here the assignment problem is a problem because people have different ability to perform in different jobs. हर एक आदमी हर एक काम को एक तरह से एक ही टाइम में नहीं करता है, ठीक है? Because of efficiency, because of attitude, because of skill, people are taking different time. People are taking different time to perform different jobs. So as a suppose my interest of teaching is into numerical problems, dealing with numerical problems, so that is my area. So I may be best suitable in that particular area. So therefore people having different ability to do different jobs. Okay, so you need to find that ability and you need to find the job requirement and assign that particular job to that particular person. And therefore the cost of performing job is different. Obviously एक आदमी एक काम को 5 घंटे में कर रहा है, दूसरा उसी काम को 3 घंटे में कर ले रहा है, तो जो 3 घंटे वाला है उस पर आपको कॉस्ट कम देनी होगी, ठीक है? सो दैट इज व्हाई असाइनमेंट इज अ प्रॉब्लम. Assignment of jobs is a problem. Okay, so using this particular problem there are solutions, and in this particular model we have such kind of problems we deal into it, and we have methods to solve this particular problem. So let us take one example. Here this is an example where you can see there are 4 jobs, A, B, C and D, and there are 4 workers again, 1, 2, 3 and 4. Okay, so I am taking one of these very simple example where number of jobs and number of workers are equal. Maybe sometime it is not equal. That can be taken into in next classes. So here this is best or you can say perfect situation where workers are 4 and jobs are again equal. 4 workers, 4 jobs. So this is a time taken. These values are nothing but the time taken in minutes or maybe in hours. These values, these numerical values are nothing but time taken in minutes, and it is like, मैं आपको अगर बता पाऊं तो आपकी बुक में पेज नंबर 295 पर ये एग्जांपल है, पेज नंबर 295. You can refer to that particular page.
Page number 294. Okay, so what is these number meaning? It means that if you allocate worker 1 to job A, then it will take a time of 45 minutes. Similarly, this 48 means if you allocate worker 3 to job C, it will take 48 minutes. Similarly, all possible combinations of workers and jobs are given here, and time taken is also listed in this particular table. So, is this table is clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now our job is to assign one job to one person. वन जॉब टू वन पर्सन, ये बात ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि एक वर्कर को दो काम देंगे या एक जॉब को दो वर्कर देंगे। सो 1:2 और 2:1 इज नॉट अलाउड। ओनली वन पर्सन एंड इज एलोकेटेड टू वन जॉब। नाउ यू हैव टू एलोकेट दिस पर्टिकुलर job to person combination in such a way that total time taken would be minimum. This is our objective. बताइए, क्वेश्चन क्लियर है? सिचुएशन क्लियर है? नहीं बताइए। यस सर। ओके, तो एक बार जरा इधर देखते हैं। So assignment problem, thus in assignment problem the question is how should assignment be made in order to that the total cost involved is to be minimized or maximized in case of profit. वो हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल कॉस्ट को मिनिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग एनी असाइनमेंट प्रॉब्लम देयर मस्ट बी टू प्रीरिक्विजिट. Number one, the number of rows must be equals to number of columns. That is, the number of jobs must be equal to the number of persons. And the second is, optimal solution would be always such that only one assignment is to be given in one row and one column. यानी एक पर्सन को एक ही जॉब देना है और एक जॉब को एक ही पर्सन देना है। 1:1, दो लोगों से एक काम नहीं कराएंगे और एक काम दो लोगों से नहीं कराएंगे। ठीक है, तो किसी भी तरह से 1:2 और 2:1 का रेशियो नहीं आना चाहिए। ओनली 1:1 इज अलाउड। ठीक है, नाउ दिस इज द प्रॉब्लम गिवन टू अस इन दिस पर्टिकुलर शीट। सो पहले ये बताइए कि हमें क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, अगर हम इस काम को मैनुअली करें विदाउट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर, विदाउट यूजिंग एनी मेथड, मैनुअली करें, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस टेक वन सिंपल वे, लाइक इफ वी एलोकेट वन वर्कर 1 टू जॉब ए, इट रिक्वायर्स 45 मिनट्स। एक जनरली एक ना शुरुआत करके देखते हैं कि क्या रहता है जब अगर हम मैनुअली करते हैं तो। एंड वर्कर 2 विद जॉब बी, इट विल टेक 42 मिनट्स। वर्कर्स 3 is allocated to job C. Suppose ये अभी सिर्फ अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 to D, it requires 55 minutes. So what is the total time required to complete the job? 190. 190. So 190 minutes is required to complete all the jobs, but this may be a feasible solution. Again, terminologies वही चलती आ रही हैं पहले वाली, but may not be optimal. This may be one of the feasible solution, but we don't know whether it is optimal or not. Optimal मतलब क्या इससे कम कॉस्ट पे भी काम हो सकता है क्या? So if in this way we are trying to make combinations of jobs and workers, like अगली बार मैं अगर बना देता हूँ कि 1 को B, 2 को C, 3 को D और 4 को A, अगर मैं ऐसे ऐसे करूं तो कैन यू इमेजिन देयर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर? 24 सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे अगर हम इसको मैनुअली करने की कोशिश करें। मेरी बात समझ में आ रही है आपको?
Yes, sir. और अगर आप अपनी पेज सर बुक का 24 पेज, कैसे होगा? हाँ सर कैसे 24 आया, एक बार फिर से बता दीजिए। 24 आया बिकॉज वी हैव फोर वर्कर्स एंड 4 जॉब्स. सो 4 वर्कर्स एंड 4 जॉब्स, ये मतलब 4 का फैक्टोरियल करें, फैक्टोरियल 4, ओके सर। फैक्टोरियल 4 इज 24. ठीक है. आप अगर बुक ओपन कर पा रहे हैं तो पेज नंबर 290 पर देखिए, पेज नंबर 290 पर, 290 पर देखिए उन्होंने क्या किया है इस पेज पर. ये सारे के सारे 24 सॉल्यूशन की लिस्ट बनाई हुई है. दिख रहा है आपको बुक अगर कुछ लोग अगर बुक देख पा रहे हो तो, Yes, sir. है ना. पेज नंबर 290 पर इन्होंने सारे 24 सॉल्यूशन की लिस्ट बनाई हुई है और उनमें से एक सॉल्यूशन को हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज हैविंग मिनिमम टाइम. कितना है वो मिनिमम टाइम? 184. 184. वेरी गुड. इसका मतलब आप लोग बुक देख रहे हैं तो आप भी देख सकते हैं, अगर और लोग भी अगर बाद में देखें तो पेज नंबर 290 पर ये सारे के सारे 24 सॉल्यूशन की लिस्ट बनाई हुई है कि आप किसको क्या काम देंगे तो कितना कॉस्ट आएगा. तो देर आर 24 सेट्स ऑफ सॉल्यूशन एंड आउट ऑफ दो 24 सेट्स ऑफ सॉल्यूशन देर इज ओनली वन ऑप्टिमल और सबसे कम टाइम आ रहा है उसमें 184 मिनट्स. ठीक है. लेकिन ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें. अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करने लगे तो इसको तो बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज इन केस देर आर 5 वर्कर्स इन 5 जॉब्स, तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इन केस देर आर 5 वर्कर्स इन 5 जॉब्स आर देयर, 5:5 का मैट्रिक्स होगा तो कितने सॉल्यूशन होंगे? 120. 120. 120. सिमिलरली 6:6 का होगा तो 720. ठीक है. और अगर बढ़ाएंगे तो फिर तो ये लिमिटलेस होता जाएगा और इतने सॉल्यूशन हम मैनुअली मैनेज नहीं कर सकते. इनफैक्ट 24 भी मैनुअली मैनेज करना बड़ा मुश्किल है. ठीक है. तो ये जो मेथड है इसको बोलते हैं कंप्लीट एनुमरेशन मेथड. कंप्लीट एनुमरेशन मेथड वेयर वी आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. जितने के 24 हैं तो 24, 120 हैं तो 120, सबकी लिस्ट बनाएंगे, उसमें से मिनिमम निकालेंगे. दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एनुमरेशन. बट कंप्लीट एनुमरेशन इज नॉट फीजिबल, नॉट प्रैक्टिकल, because we cannot deal so many solutions manually. तो ये ऐसे करना तो मुश्किल है या नहीं है? Yes, sir. है ना. तो मैनुअली तो कर नहीं पाएंगे हम. तो what we do, we'll have another method that is called Hungarian assignment problem. Hungarian assignment problem. ठीक, HAM शॉर्ट में लिख देंगे. हंगेरियन असाइनमेंट मेथड और प्रॉब्लम, और हंगेरियन एल्गोरिथम भी कहीं पर लिखा हुआ है. तो इसके कुछ स्टेप्स हैं. तो स्टेप्स तो हम अभी पढ़ेंगे नहीं, ये आप पढ़ लेना बाद में. इसको हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को. ठीक है. तो शुरू करें. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर है सबको? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि ठीक है असाइनमेंट तो करना है, 1:1 करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, लेकिन मैनुअली करेंगे तो इतने सोल्यूशन है कि मैनेज ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो हमें उसके लिए एक अलग से एक स्पेशल मेथड है वो यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड हंगेरियन असाइनमेंट प्रॉब्लम. ठीक है. तो आप सब लोग एक काम करें, ये क्वेश्चन एक बार अपनी नोटबुक पर लिख लें और मेरे साथ साथ करते रहें स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. क्योंकि आप 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर बाकी सारे क्वेश्चन कर पाएंगे. तो एक ऐसा मैट्रिक्स बना लीजिए 4x4 का, वर्कर्स ऑन रो साइड, जॉब्स ऑन कॉलम साइड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन यूजिंग हंगेरियन असाइनमेंट प्रॉब्लम. तो शुरू करें. Yes, sir. ओके. तो फर्स्ट स्टेप 1 लिखिए.
तो लिखिए स्टेप नंबर 1, रो मिनिमाइजेशन. स्टेप नंबर 1, रो मिनिमाइजेशन. फोर पे चलिए. Just a minute, I'm sharing it again. Okay, so this is the question. Write down the step number 1. Step number 1 is row minimization. Step number 1 is row minimization. So what we do in row minimization, देखिए मेरे साथ साथ करते रहेंगे सब लोग. रो मिनिमाइजेशन में हम क्या करने वाले हैं? इन फर्स्ट रो or in each row rather, we find minimum element, minimum cost element and subtract this element from the entire row. तो फर्स्ट रो में मिनिमम कितना है? 40. 40. We subtract each element. We subtract each element with 40. So 45 minus 40 become 5. This becomes 0, 11 and 27. ठीक है, आप लोग ऐसे नहीं करना, आप लोग नई मैट्रिक्स बनाना. ठीक है, ऐसे काटना नहीं है. तो मेक अ न्यू मैट्रिक्स with step number 1, row minimization. Now in second row, the minimum cost element is 42. 42. So subtract each element of row 2 with 42. तो कितना आएगा ये? 15, 0 and 21, 13. देखिए ठीक है भाई. Yes, sir. थर्ड रो मिनिमम कितना है? 48. तो माइनस करेंगे तो 1 आएगा. 4, 0 and 16. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं देखने को मिलेगा आपको, बिकॉज यू आर सब्ट्रैक्टिंग द मिनिमम वैल्यू. एंड इन सेकेंड रो, थर्ड रो and fourth row now, fourth row is minimum is 41. 41. तो 41 माइनस करेंगे तो 0, 4, 19 and 14. देखिए सब लोगों का यही है, किसी का डिफरेंट तो नहीं है. No, sir. Yes, sir. ठीक है, सब लोग पेन पेंसिल लेके मेरे साथ करते रहेंगे तो आपका ये दिखेगा मैट्रिक्स. यहां तक सबका हो गया स्टेप 1. Yes, sir. Yes, sir. Now step 2. Step 2 is column minimization. So whatever we have done in step 1 with each row, now we have to do that same step with each column. So in first column, the minimum cost element is 0. 0. So if we trying to subtract 0, so obviously there would be no change. तो मैं 0 माइनस करूंगा तो कोई चेंज नहीं होगा. In second column, the minimum cost element is again 0. So if I am trying to subtract 0, so there is no change. Similarly, in third column,
no change because the minimum cost element is 0. But in fourth column, the minimum cost element is how much? 13. 13. 13. So we need to subtract this 13 from the entire column. कॉलम से देखा है तो कॉलम में ही माइनस करेंगे, तो कितना आएगा? इधर तो 0, 14. इधर 14, इधर 3 and 1. ठीक है, 6 नहीं है, 3 है, 3 1 Yes, sir. Yes, sir. है ना. तो आपको ये मैट्रिक्स ऐसे दिखेगी. ठीक है भाई, सब लोग यहाँ तक आ गए? Yes, sir. Yes, sir. नाउ स्टेप 3. स्टेप 3 लिखिए. स्टेप 3 लिख देंगे जरा आप यहाँ पर. ड्रॉ minimum number of lines to cover all zeros. Draw minimum number of lines to cover all zeros. ठीक है भाई, minimum number of lines to cover all zeros. What about this line? These lines would be either horizontal or vertical. Diagonal नहीं होनी चाहिए. मतलब either these lines would be like horizontal or vertical. Diagonal lines are not allowed. ठीक है. So we have to draw minimum number of lines. इस minimum word को अच्छे से highlight, bold, italic, underline कर देना, क्योंकि इस minimum को बड़ा ध्यान रखना है. मिनिमम कम से कम लाइंस ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, टू कवर ऑल जीरोस. जीरोस जितने भी यहां पर दिख रहे हैं वो. ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ दीज लाइंस. तो पहले वो लाइन ड्रॉ करें जिसके ड्रॉ करने से ज्यादा जीरो कट होते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि ये बी वाला जो कॉलम है इसको मैं ड्रॉ कर लूँ. ठीक है, एक इस लाइन को ड्रॉ करने से कितने जीरो कट हो गए? 2. हमें क्या करना है? कम से कम लाइन ड्रॉ करनी है और सारे जीरो काट देना. कम से कम लाइन ड्रॉ करनी है, ध्यान रखेंगे, कम से कम. ये नहीं कि 1 2 3 4 आप सारे रोज काट दें और कह दें कि तो 4 हो रहा है. 3 में हो सकता है, तो वो भी देखना है. नाउ एनी अदर जीरो? यस, देयर आर 1 2 and 3 जीरो, एंड दीज 3 zeros आर ऑन इंडिपेंडेंट लोकेशन. हर एक अलग रो में, अलग कॉलम में. सो ड्रॉ दिस लाइन, next draw this line and this line. So number of lines required to cover all zeros is equals to 4, and that is equals to order of matrix. हाँ जी, बताएं. How many number of lines are required to cover all zeros? किसी के पास कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं आ रहा कि 3 लाइन ड्रॉ करने पे ही सारे जीरो कट हो रहे हो? 5 तो हो ही नहीं सकता है. 4x4 के मैट्रिक्स में 5 लाइन की जरूरत तो कभी नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो किसी के पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 लाइंस ड्रॉ करके सारे जीरो कट हो रहे हो? Yes or no? Okay, so now we have number of lines equals to order of matrix, that is 4. मतलब उतनी लाइन हो गई जितने मैट्रिक्स का ऑर्डर है. मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 4x4. ठीक है, तो 5 लाइंस ड्रॉ करने पड़े और 4 लाइंस ड्रॉ करने पड़े और 4 ही मैट्रिक्स का ऑर्डर है. ठीक, तो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स स्टेप 4. अगर ऐसा नहीं होता है कि ये लाइंस कम रह जाते हैं, मान लीजिए सारे जीरोस 3 लाइन से कट हो जाते हैं या 2 ही लाइन से कट हो जाते हैं, तब फिर हमें एक और स्टेप चल रहा होता है.
but since the number of lines equals to order of matrix, that is why it is step 3 is complete. Now we are moving towards step 4. ठीक है, तो आप लिखेंगे स्टेप 4. स्टेप 4 में हम क्या करने वाले हैं कि असाइनमेंट करेंगे. मेक ऑल असाइनमेंट्स एट जीरोस पर असाइनमेंट करने वाले हैं. कैसे करेंगे जरा एक बार देखेंगे. देखिए, कोई ऐसा जीरो देखिए जो सिंगल हो अपने रो या कॉलम में. एनी सिंगल जीरो, कोई ऐसा जीरो जो अपनी रो या कॉलम में सिंगल हो, आइदर रो और इन कॉलम. कोई दिख रहा है आपको? 3 and 4. Yes, sir. Third and fourth. थर्ड रो एंड फोर्थ रो. Yes, Yes, sir. sir. तो आई मेक सम बॉक्सेस हेयर. बॉक्स का मतलब मैंने यहाँ पर ये असाइनमेंट दे दिया है, मतलब वर्कर 3 को जॉब सी दे दिया है. सिमिलरली वर्कर 4 को जॉब ए दे दिया है. एनी अदर सिंगल जीरो? यस, इन फर्स्ट रो देखेंगे तो रो ही देखते, रो या कॉलम कुछ भी देखना, लेकिन अपनी रो या अपने कॉलम में वो सिंगल होना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट रो में सिंगल जीरो है, इसको असाइनमेंट दिया, यानी कि वर्कर 1 को जॉब दिया बी. ठीक है, और इस जीरो को हम कैंसिल कर देंगे, मतलब क्रॉस लगा देंगे, एक छोटा सा क्रॉस, इसलिए कि हम गलती से यहाँ कोई असाइनमेंट ना कर दें. गलती से हम यहाँ कोई असाइनमेंट ना कर दें, बिकॉज हर एक पर्सन को एक ही जॉब देना है. ठीक है, मान लीजिए मैं गलती से यहाँ पर ये एक बॉक्स और बना दूं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक ही जॉब 2 लोगों को दे रहा हूं. ठीक है, सो इन ईच ए कॉलम एंड इन ईच रो देयर शुड बी 1 बॉक्स ओनली, देयर शुड बी 1 असाइनमेंट ओनली. So that is why I do cut this particular zero. Now in column 4, that is column D, there is a single zero, and mark this assignment, that is worker 2 assigned to job D. ठीक है, बताइए भाई, ये बात समझ में आ गई नहीं? Yes, sir. सर एक बार रिपीट कर दीजिए. कहाँ से रिपीट करना बताइए? सर लास्ट सर ये जो आपने डी को अलॉट किया है ना वो डी वाले कॉलम में एक ही जीरो है, देखिए सिंगल जीरो है, तो असाइन कर सकते हैं. किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सिंगल जीरो जहां दिखेगी वहां असाइनमेंट करते हैं. बताइए भाई. सर ये सेकंड रो में 2 जीरो है ना, लेकिन 2. हाँ, सेकंड रो में हाँ 2 जीरो है, तो इसको हमने काट दिया था ना. जैसे ही हमने फर्स्ट रो में सिंगल जीरो देखा बी, इसको असाइन किया. इसको असाइन करते ही इससे पास होने वाली रो और इससे पास होने वाला कॉलम की सारी जीरो काट देंगे हम, बिकॉज वी कैन नॉट मेक 2 बॉक्सेस इन अ सिंगल रो और कॉलम. तो मैं गलती से यहाँ बॉक्स ना बना दूं, इसके लिए मैंने इसको काट दिया. ठीक है, अगर मैं गलती से यहाँ बॉक्स बना देता तो क्या होता, जॉब बी 2 वर्कर को असाइन हो जाता, वर्कर 1 एंड वर्कर 2. सर ठीक है जी. सर हमें इस क्वेश्चन में मतलब रो और कॉलम दोनों देखकर ही असाइन करना होगा. हाँ, रो को देखिए, कॉलम को देखिए, मिक्स देखिए, कहीं से भी शुरू करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जीरो सिंगल होनी चाहिए. यस. ठीक है, तो फिर इसको असाइनमेंट किया. नाउ व्हाट इज द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इनटू इट? कॉस्ट देखेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन से. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? एक बार और आपको बताना चाहिए मुझे, बताइए. ये असाइनमेंट सर आ गया. सर आ गया. इफ यू फील देन आई कैन रीडू इट अगेन. ओके, तो यहां देख लेते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन कहाँ था. ये दिस वन. चलिए आप ही बता दीजिए, आपके पास क्वेश्चन होगा. बताइए 3C पर कितना वैल्यू लिखा हुआ है क्वेश्चन में? 48.
48। 4A पे कितना लिखा है? 41 41 1B पर, 40 40 2D पर, 55 55 टोटल कर दीजिएगा 184 184। ठीक है, एंड दैट इज द मिनिमम वन। ठीक है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा आपको। 174 174 174 120 क्वेश्चन में आपने देखा नहीं, 4A 1B 3C एंड 2D, ठीक तो है। क्वेश्चन में क्या देखते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर? 3C में कितना लिखा है? 3C 48, ओके। 4A 41, सर वो 55 है लास्ट में 2D। सर 174 आएगा। एक मिनट, रुको। 2D में 55 है, यस, वैभव ने सही बताया। 2D में यहाँ 55 है, ठीक है, 45 में। सो नाउ इट इज 184, ठीक है। So this is how we can reach the final solution and optimal solution. Now we can say that this is the optimal solution and there is no better solution available to us.